I was found by police 15 kilometers away from home, barefoot, without anything, brought back home, shouted at by. मैं 500 रुपए देता था और अगले हफ्ते 700 रुपए लेता था. Oh my God. But then also I got suspended from school because किसी ने जाके complain कर दिया कि. पर इसमें गलत क्या था? I took all my belongings, everything, and I walked out of home. With the goal to go to Himalayas and meditate. So my nani, she said no for everything. And I think that was good. मतलब मुझे लगता था कि यार ये कुछ नहीं देती, एकदम कंजूस है. But actually she was very right to say no, because then I learned कि no is not the end. I used to dream about studs and I used to sleep in the night. सुबह उठते आज तक नहीं मुझे studs ही चाहिए. So, hey everyone, welcome to Talkie Talkie podcast. So, today we have a very special guest with us. So, everyone, please welcome Shreyan Daga. So, thank you so much, Shreyan, for coming us, giving your special or precious time to us. So, we are very excited to know about your journey, your Shark Tank journey, and just proceed. Thanks for inviting. I think firstly, thank you so much. It's our pleasure. So, Shan, can you please share about your journey? Like, first question I wanted to ask you, like, you became entrepreneur at the age of 8. Yeah. Schooling भी complete नहीं हुई. How? So actually जब मैं छोटा था तब I wanted football shoes. Okay. तो studs जो थे वो Nike के 7,000 रुपए के होते थे. Okay. So I wanted to buy those studs and I went to my nani. I used to stay with my nani. Okay. तो like any other parent और like पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? They said नहीं. Useless है. हाँ. So I was like कि मुझे तो चाहिए. So I used to dream about studs and I used to sleep in the night. सुबह उठते आज तक नहीं मुझे studs ही चाहिए. So then one day I decided. So I used to paint a lot. So I decided I'll take my paintings, I'll get it framed, and then start going door to door. I listed it on a website, and then I went, and after 150 doors, everybody rejected. Finally, one person said, "Okay, I'll buy it from you." Okay. And they bought it for 9,000 rupees, and that was my first. Which kind of painting it was? It was a flower painting. Flower painting was first. आपने 9,000 की एक flower painting sell कर दी. कौन सी website पे sell की? I had developed the website myself. मतलब website भी खुद बनाई, client भी आ गया और 9,000 rupees भी आ गए. Yeah, you are a multitasker. And like one more coincidence I found is like I was also a football player at the when I was in 10th class and मैंने state level तक खेला है. सही है. आपने entrepreneurship 8 years से start कर दी, तो आपकी first income थी 9,000 की. उसके बाद आपने कैसे ग्रो किया? लाइक आपने ये सोचा कि मैं पेंटिंग से ही ग्रो करता हूँ, या यू भी लाइक कि मुझे फ्लक्चुएट हुआ आपका माइंड कि नहीं मुझे तो अभी और किसी फील्ड में जाना चाहिए? मैं काफी स्मॉल था उस टाइम, तो जूते मिल गए, फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि अच्छा उनके जूते खरीद दिए? आया विद द मनी आई अर्नड, आई बॉट माय सेल्फ जूता. गोल क्लियर था आपका कि ये चीज चाहिए तो ये इतने पैसे कमाने हैं, वो आपने कमा लिए. फिर नेक्स्ट गोल क्या था आपका? So in 7th standard, all my friends had a smartphone. मेरे पास वो डब्बा वाला नोकिया फोन था. उसमें हाई लिखने के लिए 10 बटन दबाना पड़ता था. Right. So for that I wanted a phone. Right. So फिर मैंने डिसाइड किया वापस नानी के पास जाएंगे. वापस सेम स्टोरी हुआ. Okay. And I joined so outside my school there's a canteen. Okay. So I set up a bank, okay, where I would give my friends loans. So मैं 500 रुपए देता था और अगले हफ्ते 700 रुपए लेता था. Oh my God. तो आपने एक स्मॉल बैंक, ठीक है, आपने सेटअप कर दिया. आपने उस स्मॉल सेटअप कर भी दिया. व्हाट इज योर सिक्योरिटी? कि वो थे तो आप भी बच्चे थे, सामने वाला भी बच्चा था, आपके पास सिक्योरिटी क्या थी कि आपके दोस्त आपको रिटर्न देंगे? भरोसा था, ऊपर से आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स हु वर क्वाइट स्ट्रांग, तो वो भी एक. बट देन आल्सो आई गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल बिकॉज़ किसी ने जाके कंप्लेन कर दिया कि. पर इसमें गलत क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई पूछे exactly. तो गलत क्या था? मतलब स्कूल में हमें सिंपल इंटरेस्ट सिखाया जाता है. Right. एक तो आदमी
प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिक्कत ये है ना, स्कूल्स में बिजनेस स्टडीज नहीं सिखाई जाती। दिस वाज बिजनेस, उनको नहीं पता था स्कूल में एक बिजनेस पर्सन बड़ा हो रहा है। अच्छा, तो स्कूल वालों की ये कमी थी कि उनके एजुकेशन सिस्टम में खराबी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इट्स जस्ट दे फेल्ट दैट प्रेमाइसेस के अंदर बिजनेस करना अलाउड नहीं। आप बिजनेस करो, स्कूल के बाहर करो। दे डिड सपोर्ट अ लॉट। बट आपने तो एक अच्छा खासा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया था ना? एंड तो मेन क्या था कि 45% इंटरेस्ट पे दे रहा था, तो थोड़ा वो उन लोग को कभी आपको टीचर्स ने रीच आउट नहीं किया कि हमें भी दे दो लोन, हम 50% देंगे? नहीं। अच्छा, सो लाइक आपने इतना कुछ किया, आपने पैसों के लिए किया, ऑब्वियसली बात है, दिमाग में एक मनी माइंडेड आपका स्टार्टिंग से माइंड रहा है। बट आपको मनी की रिक्वायरमेंट क्या थी? कि जबकि आप यू बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली, लाइक आई गेस योर फादर इज अ इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, आई गेस। नहीं, आई टोल्ड यू आई ग्रू अप विद माय नानी। तो my नानी she said no for everything, and I think that was good. मतलब मुझे लगता था कि यार ये कुछ नहीं देती, एकदम कंजूस है, बट एक्चुअली शी वाज वेरी राइट टू से नो, बिकॉज देन आई लर्नड कि नो इज नॉट द एंड, यू नो, यू कैन, अगर मिल जाता तो आप कमाते कैसे? एग्जैक्टली। So majority kids that we know today, they don't even have the requirement of money because उनको सब कुछ silver plate में मिला जाता है। Okay. So luckily I was that child who was said no to, and I'm sure there are many kids who are there who are said no to. Great mindset, I guess. हाँ. So like पहले आपने 9,000 की अर्निंग की, फिर आपने पहले आपने एक पेंटिंग सेल कर दी, फिर उसके बाद आपने एक स्मॉल बैंक सेटअप कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया? So then majority of my material जो needs थे वो खत्म हो गए थे। Oh. अब मुझे you know, in the 9th grade, in the 10th grade start, it was 15th February 2020. Okay. So I was very inspired by Gautam Buddha. Oh. So उसमें लिखा था कि Gautam Buddha left his home. हाँ. So for the enlightenment. For enlightenment, and on the way he gave everything up. So I said, मुझे भी करना है. So you did the same. Yeah. And so how? I took all my belongings, everything, and I walked out of home. With the goal to go to Himalayas and meditate and find this thing. So on the way, I first gave my slippers and wallet, watch. तो जब मैंने मेरा एक साइकिल जो था एक बच्चे को दिया, I still remember his face till date. He was brown complexion, his teeth were crooked, and he took the cycle and he smiled so wide कि उसका सपना पूरा हो गया, you know, and that feeling was magical for me. Oh. That was my enlightenment. Right. And after that, I was found by police 15 kilometers away from home, barefoot, without anything, brought back home, shouted at by every relative, नाना नानी, सब एकदम डर गए थे कि 4 घंटा लड़का कहाँ चला गया हमारा, कहाँ गया। तो आप फिर वापस आए, आप फिर घर पे ही रहे, आपने दोबारा जाने की नहीं सोची? नहीं, so actually after I went and I came back, my dad said one thing कि you know, चलेगा तुझे, you want to make an impact, we understand that, but खुद मेडिटेट करके इम्पैक्ट सिर्फ खुद को ही होएगा। हाँ। बट अगर आपको दुनिया में कुछ चेंज लाना है, when I told him the story, and he said अगर आपको दुनिया में कुछ चेंज लाना है, so then he's like कि अगर कुछ ये रिस्क ले लिया तो कुछ भी रिस्क ले सकता है, तू कर बिजनेस, बिजनेस नहीं मतलब कुछ इम्पैक्ट के लिए कर। तो लाइक जब आपने ये डिसीजन लिया था, यू आर एट द इन द 10th स्टैंडर्ड, 15, yeah, you are 15 years old, so आपने उसके बाद कभी स्कूल नहीं गए? नहीं, so ऑनलाइन था, लॉकडाउन था, आई थिंक यू एंड मी ऑन द सेम बैच। So 10th 11th 10th के एग्जाम देने के बाद ही मेरे जब एग्जाम खत्म हुए थे, when I was in 10th standard, मेरा लास्ट एग्जाम SST का था, ठीक है, तो एग्जाम खत्म हुआ, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो लॉकडाउन हो गया था। ओह, सो यू आर 1 grade above me। मैं जो था, मुझे लॉकडाउन में फ्री पास मिल गया। हाँ, वो वाला ग्रेड था। मेरी 11th बिना स्कूल जाए हुई, मेरी फर्स्ट 10th 11th ये ऐसे रहा, ठीक है। तो आप फिर 12th आपने कंटिन्यू की? नहीं किया 10th, so I started OLL, so Feb 2020 was when I left home. Okay. April 2020 is when I started OLL. So you are 16 year old when you started, 15 year old when you started OLL. Yeah.
माय गॉड। और OLL के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए प्लीज। सो जस्ट लाइक आई थिंक हम लोग जब सब कोई स्कूल में थे तो किसी को भी याद है मगअप करते थे एग्जाम के लिए एक दिन पहले या एक महीने पहले या जब भी एग्जाम देने के बाद सब भूल जाते थे मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स। मैं भूल जाती थी। सो व्हाट वाज द मुझे टिल डेट समझ में नहीं आता एंड उस टाइम तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया कि पॉइंट क्या है। मतलब एक तो हम सीख रहे, इतना मेहनत डाल रहे, इतना प्रेशर है, स्ट्रेस है, ट्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऊपर से कुछ काम नहीं आ रहा। और आज की डेट पे गूगल है, चैट जीपीटी है, जो याद कर सकते चीजें स्कूल्स में तो ये तो पढ़ाया ही नहीं गया, ना ही कॉलेज में। एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाट आई थॉट कि थियोरी लर्निंग इज समथिंग दैट आई कांट डू विद। एंड मेरा जर्नी जो पूरा था वाज आउट, मतलब यू सॉ द थिंग्स आई हैड डन वाज आउटसाइड एकेडमिक्स। मुझे ज्यादा प्यार था। मुझे तो ना जब मैं बुक, मुझे सबसे ज्यादा मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैं बुक खोल के बैठती हूँ, मुझे नींद आने लग जाती है। एग्जैक्टली सेम लाइक मैं सोने के लिए बुक पढ़ता था अच्छे से नींद आती। इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि मैं एसएसटी की बुक मैंने कभी खोली नहीं। लाइक वो ऐसे कैसे रखी थी, क्योंकि मैं नहीं घुसता था यार माइंड में, तो यूट्यूब से पढ़ती थी। यूट्यूब से पढ़ के मेरे 78 मार्क्स आ गए थे 80 में से। इतना लाइक एसएसटी वाली टीचर मेरे से इतना खुश रहती थी। मैं आई वाज वन ऑफ द नोटिएस्ट गर्ल इन माय क्लास, ठीक है, तो वो मुझे फिर भी कुछ नहीं कहती थी, अरे ये शी इज गुड इन स्टडीज। तो ये वाली सीन था मेरे साथ। बट बिल्कुल बुक रीडिंग इज नॉट a cup of tea for me. I think not a cup of tea for many kids. मुझे नींद आती है। प्रॉब्लम ये है, सर भारी हुआ, नींद आई, मैं सो गई बस। एंड आज की डेट पे अटेंशन स्पैन इतना लो है that we skip reels on 3 seconds. First 3 seconds नहीं चलेगा, रील स्क्रिप्ट। तो सोचो अगर टीचर कुछ सिखा रहा है बोर्ड पे 1 घंटे के लिए सिखा रहा है, ओके, और अगर बोरिंग हुआ तो फिर तो कैसे स्किप करे? बच्चे तो बोर हो जाता है, सो जाता है क्लास में, या अटेंशन नहीं पे करते। सो दिस एंटायर प्रॉब्लम मतलब पेन्ड मी सो मच दैट आई वाज लाइक, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, आपने ना प्रॉब्लम सॉल्व की है कि भाई स्कूल में नहीं होता तो कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा कि स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, अगर स्कूल से बच्चों को नहीं मिल रही है एजुकेशन, तो आपने उसको कुछ सॉल्यूशन निकाल दिया OLL की तरफ। तो OLL की क्या फुल फॉर्म है और आपने इसका नाम OLL ही क्यों रखा? स्टार्टिंग में ऑनलाइन लाइव लर्निंग थी, क्योंकि ऑनलाइन सिखा रहे थे, बट अभी वो फुल फॉर्म डिसकंटिन्यू कर दिया 2022 में, because we also provide offline now. So OLL now just stands for all. So everything सबके लिए ये सारे स्किल्स जो स्कूल नहीं सिखा पाता है वो हम सिखाते एंड प्रैक्टिकली सिखाते। पहले करो और फिर समझो क्या करें। मेनली आप टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हो OLL में? एवरीथिंग एल्स बट एकेडमिक, सो इट कैन बी टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, लैंग्वेजेस, लाइफ स्किल्स, so something that a child wants to be in life or wants to do. जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया OLL में, तो आपने 2 लाख की आई गेस इन्वेस्टमेंट ली थी। करेक्ट। क्योंकि कुछ लोगों में क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू मी आल्सो, लाइक हमारे पास इन्वेस्टर नहीं होता है, जनरेशनल वेल्थ इतनी होती नहीं है, तो वी फेस अ मेजर इशू टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो आपके पास इसके लिए कोई एडवाइस है फॉर दोज यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है बट दे वांटेड टू डू समथिंग? सो आई टेल यू हाउ आई स्टार्टेड OLL. मैंने मतलब आई डिडंट स्टार्ट विद एनी इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट वाज नीडेड इन द फर्स्ट 2 months. I'll tell you why. So मैंने कैनवा पे पोस्टर बनाया कि फ्री कोडिंग क्लास या ऐसा प्रैक्टिकल कोडिंग क्लास, ठीक है। took a Zoom link, shared it in all my WhatsApp groups. Okay. First batch joined. We only taught it, and they loved it. Okay, but then we were like कि पहले 2 महीना हम सिर्फ फ्री में क्लासेस रन। फर्स्ट आपका सेशन किसने ज्वाइन किया? मेरे दोस्तों ने, दोस्तों के पेरेंट्स के बच्चे। आपने सिखाया इनिशियल फर्स्ट वाला? हाँ। बट अगर आपने अगर सिखाया तो उसके लिए आपको भी तो आई न्यू ओवर 20 लैंग्वेजेस। 20 लैंग्वेजेस। मेजर लैंग्वेजेस कौन सी हैं उनमें से? MongoDB, Angular, Node.js, then I knew Python, JavaScript, HTML, CSS and all those things. मैंने सब कुछ सीख लिया था ट्रायल के लिए। And like don't you think आपके फ्रेंड्स ने कभी आपको बोला नहीं you are one of the abnormal student in the school? था आप थे, ठीक है, तो आप कुछ एडवाइस दे रहे थे?
Yeah, so Canva and Zoom Link से चालू किए, and then we wanted to add more skills, so we hired interns at 3,000 rupees per month from Internshala and all these other platforms, and हमने बहुत सारे classes upload कर दिए. So there were over 7,000 daily learners in the first 2 months. Okay. Yeah, and because we were doing so many classes, so Zoom का खर्चा मेन था एक, और ये जो इंटर्न्स हायर किए थे उनका खर्चा, बट फ्री में कर रहे थे हम लोग. सो व्हेन वी कन्वर्टेड इनटू पेड आफ्टर 2 months, पहले फ्रीमियम था फिर पेड के, nobody bought. Okay. So you're like, shit, अभी 2 लाख रुपए कौन देगा? So that's when I borrowed money from my dad. I was like, I need to pay these people salary, and Zoom का एक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था उसका. उसके बाद was when the turning point happened, and my dad is like कि चलो इन लोग का हो गया, but we are मारवाड़ी, so हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस चाहिए. ये लॉस में नहीं चलेगा. आपने 2 लाख के बिजनेस से करोड़ों का बिजनेस बना दिया. हाँ, ये कैसे किया आपने? That's the journey. So we realized that trust is the biggest thing in education. Right. Like today you trust your school, you pay your school fees, that's right. But कोई एक 15 साल का बच्चा कुछ स्टार्ट करता है, कोई रैंडम माँ बाप क्यों ट्रस्ट करेगा? So that's when we decided कि we'll go through schools. Okay. So we partnered with schools and we introduced our courses through the school. Okay. That's when things started clicking up. And in the first year, when I was in 10th grade, we did revenue of 1.34 crores. Oh my God. And net profit of 28 lakhs. The thing is that आपने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदली और आपका बिजनेस बूम कर गया. Yeah. तो बिजनेस में स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा मेन है. I mean, obviously सबसे ज्यादा मेन तो फाउंडर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या कर रहे हो आप. हाँ. तो the business keeps changing. So how we ये shift किए थे हम लोग from that free model to this paid model, but these were all online live classes. Okay. Second year में क्या हुआ कि पहले साल बहुत पैसे कमा लिए. I decided चलो अब drop out करते हैं. So after 10th grade, I decided I'll not continue formal education. Okay. So I dropped out of school and I continued running OLL full time. But second year, we did a loss of 40 lakhs. Oh. Okay. Yeah, because अब किसी को online classes चाहिए नहीं थे, COVID खत्म हो गया था. And it was 2021. सोचो 16 साल का बच्चा 40 लाख का लॉस. नुकसान कर दिया. But 40 लाख का नुकसान करने से पहले उसने 1.5 करोड़ भी कमाया है. हाँ, but अब तो 40 लाख के लॉस में स्कूल सब छोड़ दिया, not on the normal path. Society is against you now. कि भाई क्या कर रहा है लाइफ में, वापस पढ़ाई कर ले, चलेगा, हम ऐसे मान लेंगे तू अब्रॉड चला गया, इसका खर्चा हम लोग ने कर दिया, you know, everything else. So that was society, but my parents still were like, तू कर, हम तेरे साथ हैं, you know. So that support was there, and that's when we shifted to the offline model in 2022. Okay. अगर आपको कोई चांस मिले, हाइपोथेटिकली आपके पास एक चांस है एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का, तो आप क्या बिगेस्ट चेंज उसमें लाना चाहेंगे? असेसमेंट मतलब जो हमें टेस्ट किया जाता है, टेस्ट इज इम्पोर्टेंट, बट जो टेस्ट है वो गलत है. मतलब इफ यू टेस्ट अ चाइल्ड ऑन डेफिनेशन, तो टीचर डेफिनेशन ही सिखाएगा और बच्चा डेफिनेशन ही सीखेगा. बट अगर आप टेस्ट, एंड दैट इन दैट वी आर टेस्टिंग द एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिमेम्बर. बट इफ वी चेंज द टेस्ट टू एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, आप जो सीखे वो कितना यूज कर सकते हो, तो उसके हिसाब से कंटेंट भी चेंज होएगा कि वही चीज सिखाएंगे जो यूज कर पाएंगे, और वही चीज टीचर्स वैसे ही सिखाएंगे जिससे बच्चा यूज कर पाएगा, और बच्चा वैसे ही सीखेगा जिससे यूज कर पाएगा. सो पूरा सिस्टम वर्क्स ऑन असेसमेंट. ओके. सो हाउ डू यू बिलीव दैट अ डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर? डू यू बिलीव दैट? If the assessment is definition, then yes. But if the assessment shifts to practical, then that degree has value. No, we are talking about the current situation. Today's world, yeah. Degrees is just a piece of paper. But like when it comes to the reality, बच्चे ना अपना कॉलेज और स्कूल को ड्रॉप आउट नहीं कर सकते. अगर हम नॉर्मल फैमिलीज में देखें तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब उनको जॉब के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी उनसे एजुकेशन के लिए उनकी डिग्री मांगी जाती है, उनकी 10th-12th की मार्कशीट मांगी जाती है. ठीक है. स्पेशली मतलब बहुत सारी 90% कंपनीज ग्रेजुएशन मांगती हैं जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए.
तो इस चीज को शायद चेंज, सिनेरियो को चेंज होना चाहिए. आप आपकी इस चीज पे क्या एडवाइस रहेगी? I think as India's education system population अगर देखा जाए तो जितने लोग हमारे पास है, एग्जाम्पल 10 करोड़ बच्चे हर साल, we have a count of 10 crore kids in school, college, etc. Nearly 7.22 CR students are passing out every year. चलो ठीक है, उसमें से कितने जॉब्स अवेलेबल है? लेट्स लुक एट दैट. 55 लाख, 50 लाख. ओके, तो रेशियो इज अराउंड 5%. 5 to 7. 5 to 7%. So now, if we have 5 to 7% of kids going into jobs, okay, what are the remaining doing? कुछ तो कर रहे होंगे ना, पैसा कैसे कमा रहे? Either they're freelancing, either they're building a family business, either they're starting up, or else they are moving abroad. Abroad तो फिर भी part of the journey to get a job only. But overall तो कोई ना कोई कुछ entrepreneurial ही कर रहा है ना, खुद का ही कुछ कर रहा है. Right? So if the goal, majority of India is doing खुद का कुछ, then the value of getting a job is, and job is safety, security, yes, but the number of jobs that are available and the number of people that are available is very different. So we should, as an entire system, should focus on building and teaching how to run a business, how to build a business from start only. क्योंकि 90% बच्चे तो बिजनेस ही करने वाले और 5% बच्चे जॉब मिलने वाले. As a youngest entrepreneur, you are one of the youngest entrepreneur. Like we are on same table. We are same है, but फिर भी I'm the host. I have to ask it. So rather than keep it aside that we both are from same age group, आपको अपनी जर्नी में as a young entrepreneur क्या-क्या difficulties face? बहुत I mean the thing is, society is always against you. Okay. Because relatives बोलेंगे कि बेटा पढ़ ले, you know, ये सब क्या कर रहे हैं, सेफ्टी कहाँ है, एटलीस्ट एक डिग्री तो ले ले, 12th तो पास कर ले. Have they ever said दादाजी का बेटा स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता? हाँ नहीं, उससे ज्यादा बोलते लड़की कौन देगी, that type of level कि शादी कैसे होएगी अगर डिग्री नहीं है, you know, that is the biggest thing. So relatives, then family, friends तो होते ही नहीं है क्योंकि because you're full time into business, so very limited friend circle, so it's a very lonely journey as an entrepreneur. This is the bitter truth you have said, because I can relate it too. Like I don't have any friend and I don't have anyone. When I was in college, मैंने अपना college अभी discontinue किया है. I was in last year and मैंने discontinue कर दिया. I was facing many setbacks, like college was not supporting me. I was into my office all the time and they were like attendance short. They are not supportive at all and I don't have any friend who can call me, yes, today's exam. Even अगर कल एग्जाम है मुझे पता भी नहीं है कि कल एग्जाम है. कल प्रैक्टिकल है तो मुझे पता ही नहीं है. वो तो ठीक है, मतलब see, that is the college school stuff. Like even stuff like हमारे एज के बच्चे सब पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक, अल्कोहल, ड्रग्स, नशा, सब कुछ. Right? And I was out there sitting at 15. My friends were all after that party and this that. I was sitting there, भाई चलो काम करो. लॉकडाउन में सब नेटफ्लिक्स के मूवीज बिंज कर रहे थे, मैं लॉकडाउन में काम कर रहा था. मैंने भी लॉकडाउन में कोडिंग सीखी थी. Exactly. उसके बाद ये था कि लॉकडाउन में कोडिंग सीखी, उसके बाद स्कूल के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया. This was how entrepreneur built themselves. So yeah, so all these things, extraordinary करना पड़ता है. Problems happen, and the thing is, until you don't have to say these things, मतलब you don't have to fight them with words. The biggest thing is आप बोल के fight करोगे, नहीं ये तरीका सही है, ये तरीका सही है, ऐसे नहीं लड़ी जाती लड़ी. When you prove, your actions prove. Right. When you're जैसे जब मैं शार्क टैंक पे आया, okay, तब सारे दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, अरे वाह यार श्रेयान क्या बात है, मुझे मालूम था तू स्टार्टिंग से ही आगे. Everyone stands by your side at that time. ये तो मेरा भतीजा है, you know, that type of level. But before that everyone like, I don't know, कोई पूछता तक नहीं है. Exactly. So you have to be okay to put your head down, continue working, and then when you get recognized, then you get recognized. If you don't get recognized, you don't get recognized. Absolutely. So
Share your Shark Tank experience, like when you entered and you just started pitching and everyone was shocked. And I guess Piyush Bansal Shark was very curious to know about your age. He was like, "Why you are being so slippery? Just tell your Anupam Mittal. age." Yeah. Anupam, I so sorry. It was Anupam Mittal. So Anupam was so curious to know about your age. He was like, why you are being so slippery? Just tell ना कि आपकी एज क्या है और आप अपनी पिचिंग में लगे हुए हो, तो कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओ उसके बारे में. नहीं, so there's one thing that in the start, like you are it's not scripted, but you are prepared. Yeah. So the first 3 minutes that you have is something that you are prepared for, which you have to pitch to the sharks. Now मेरे जो preparation में एक special चीज था कि I was not allowed to reveal my age आसानी से. So if someone asks me, I have to first tell the entire story, and still they keep asking you, just tell them, and then finally when they push you, that time you say, okay, this is your age. So they were like कि तुम बताओ मत कि तुम 18 साल के हो या that thing. So, it was Shark Tank team. Yeah, Sony team had told me, don't tell them upfront. Okay. Let them, get impatient about it. So then I was like, ठीक है, that I'll do. So that's why Anupam got a little bit of a sour this thing. So overall, how was your experience? I think Shark Tank is like my graduation certificate. Like, whenever someone introduces me, like first ये BA है, ये MA है, ये Shark Tank पे गया हुआ है, वैसा introduction हो जाता है. Right. So that is a very, very big thappa certificate for you as a person if you get funded or featured on Shark Tank. Bigger than that, the marketing was good. However, we are a B2B business, so sales was not directly impacted. Indirectly, sure, but एक story line बन जाता है कि 18 साल का बच्चा 10वीं drop करके, so that results was there, and वो एक attention मिलती है audience से कि how so young or kid, we can say teenage person is doing such a big business. Correct, and more than that, I think there were kids who were like me who got inspired that अगर श्रेयान भैया कर सकता तो मैं भी कर सकता. Right. So that was the bigger impact for me. आपको कुछ बुरा लगा जब कुछ शार्क ने स्टार्टिंग में लाइक कुछ नाम नहीं लूंगी, कुछ शार्क ने आपको आउट कर दिया, लाइक आपकी डील से आउट बैकस्टेप कर लिया था, तो आप disappointed हुए या it was like okay? I was a little bit disappointed because I had gone all in for that pitch, like gave my full for it. But I think हर एक जन के लिए वही होता है. But finally, I think Piyush and Vinita stood up and said yes. वो भी negotiate करने के बाद I got a valuation which was lower than my previous round, but still I was like चलो करते हैं, let's do it. So आपने उनको exit दी? नहीं, so we did not accept the funds from them. Reason being, जब हमारा episode record हुआ था was August 2022. Right. It got aired in Feb 2023. And in March 2023 they come and they like कि अब हम due diligence चालू करना चाहते हैं. Before that, zero contact, zero this thing, nothing. March में वो लोग बोलते चलो अब चालू करते हैं हम due diligence. I'm like okay, but हमारा valuation change होना चाहिए because we are doing more revenue than the company की valuation change हो गई है. Exactly, but then they weren't ready to match on a mutual valuation. तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चलेगा. So you just cancelled everything, like every deal जो भी हुआ था, आपने वो सभी cancel कर दी. और like आपको जब विनीता एंड पीयूष ने लाइक डील थी, उसके बाद उन्होंने आपको सपोर्ट किया? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं किया, लाइक कोई कांटेक्ट, और लाइक उनकी टीम ने आपसे कांटेक्ट करके आपकी कुछ बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प की हो? कोई हेल्प नहीं. एंड नहीं, आई थिंक शार्क टैंक इज फॉर मार्केटिंग. इफ यू आर गोइंग फॉर फंड रेजिंग, डोंट गो. इफ यू आर गोइंग फॉर द मोटिव इज आपका ब्रांड एक उस लेवल तक हाईलाइट होने के लिए जाओ. बट अगर इफ यू आर गोइंग फॉर द फंड्स, तो मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही आपकी ब्रांड को निचोड़ के रख देते हैं. Absolutely. आपको क्या लगता है? जितना मैं शार्क टैंक देखती हूँ, मुझे ये लगता है, ठीक है, दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन, जो आपको चेक मिलता है, लाइक अभी तक कुछ कंटेस्टेंट ने ये चीज़ें अपलोड की हैं, रिवील की हैं कि
जो शार्क टैंक में जो चेक मिलता है वो डुप्लीकेट होता है, नकली होता है। मैंने इनफैक्ट एक रील भी बनाया था वेयर आई हैड गॉन एंड डिफरेंट डिपॉजिटेड इट टू या ऐसे वो तो जैसे इंडियन आइडल में भी आई मीन इफ यू हैव सीन हैप्पी न्यू ईयर द मूवी, तो उसके बाद वो जो बड़ा सा चेक मिलता है वो सब नकली होता है ऑब्वियसली। नहीं, नकली चेक मिलता है बट उसके साथ दे गिव द ओरिजिनल वन। So that original is not until you do the due diligence and all that. तब तक नहीं आता because it's an investment, it's not a prize money. मतलब जो शार्क टैंक में हम लोगों को ऑडियंस को दिखाया जाता है कि हाँ भाई चेक मिल गई, फंडिंग मिल गई, वो सब नकली होता है। इट वाज जस्ट फॉर द शो ऑफ। इट्स अ सॉफ्ट कमिटमेंट। सॉफ्ट कमिटमेंट। बाद में वो बैक कैमरा क्या रहता है कोई किसी को कुछ नहीं पता। वेरी ट्रिकी थिंग्स। अच्छा, आप जब शार्क टैंक में गए तो आपने शार्क टैंक में जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर किया होगा, ठीक है। प्रिपरेशन में आपने एक वैल्यूएशन डिसाइड की होगी, एक इक्विटी कितनी देनी है और कितना आपको फंड चाहिए, ये सब आपने कैलकुलेट किया होगा। अगर हमारे ऑडियंस में से कोई शार्क टैंक जाना चाहता है तो आप उनको कैसे एक आइडिया दोगे कि वो अपनी कंपनी का टर्नओवर के अकॉर्डिंग कैसे वो सारी चीज़ों को गेस करे कि कितनी इक्विटी देनी चाहिए, कितना फंड लेना चाहिए, कितनी उनको वैल्यूएशन होनी चाहिए उनकी कंपनी की? I think after a long time I understood that valuation is story. Okay. मतलब आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन और स्टोरी कर पाओगे उतना अच्छा आपका वैल्यूएशन हो सकता है। जैसे किसी के पास अगर 0 रेवेन्यू है बट अगर वो लोग फाउंडर्स उस डोमेन के तो भी वो लोग एक अच्छा वैल्यूएशन डिमांड कर सकते हैं। बट अगर किसी के पास हाई रेवेन्यू है और प्रोडक्ट या आइडिया कुछ इतना यूनिक नहीं है बट उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं था तो वो हायर वैल्यूएशन नहीं डिमांड कर सकता। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी यू आर सेलिंग। नहीं, लाइक ये चीज बैक कैमरा रिव्यू की जाती है कि नहीं आप इतना नहीं मांग सकते, इतना मांगो? ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क यू गेट टू आस्क दैट। द मेन थिंग इज इट्स हाउ इफेक्टिवली यू आस्क, मतलब आप क्या स्टोरी बेच के आस्क कर रहे हो। सो द स्टोरी सेज लाइक क्रेड टुडे डज अ रेवेन्यू ऑफ से 600 crores, उसका वैल्यूएशन $1 billion प्लस है। So what is justifying that? 600 into which multiple is 8,000 crore. So that is something that doesn't make sense. So, like it's all about stories. Kunal Shah पहले उसने फ्री चार्ज बनाया, फिर मूवी ब्ला 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 करके अब वो कुणाल शाह अगर करे तो चलेगा, वैसा सबको दिमाग में रखता है। So it's again stories sell. So investors buy stories. So आपके अकॉर्डिंग अगर किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको अपनी फील्ड कैसे चूज करनी चाहिए और वो कौन सी फील्ड में जाए? B2B मार्केट को चूज करे या B2C को करे? आपके अकॉर्डिंग मैं तो बोलूँगा पहले बिजनेस चालू ही मत करो। अगर आपको पैसा कमाने के लिए करना है, अगर आपको फेमस बनने के लिए करना है, अगर आपने श्रेयान डागा को देखा कि ये देखो ये इतना फेमस हो रहा है, ये पॉडकास्ट में आ रहा है, अरे इतना पैसे कमा रहा है, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि मुझे खुद का बॉस बनना है, मैं किसी के अंदर काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो ये रीजन है तो मत करो बिजनेस। नहीं, खुद का बॉस वाला तो कि हाँ मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, क्योंकि मालिक बनना है तो पहले वर्कर बनना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल अलग ही हो जाती है ऐसे मेंटेलिटी के लोगों नहीं। सो इफ इट्स you're right, so if it's these reasons I would say don't start a business, but if the reason is कि मुझे दुनिया में एक प्रॉब्लम दिख रहा है एंड वो प्रॉब्लम मुझे बहुत दुख देता है कि ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, या वो प्रॉब्लम आपको then you think of a startup, otherwise it's a business or you do a job, you follow the normal path. But if you want to really start a startup which you feel will go to say $1 billion valuation or $2 billion, your mean is कि if you found something that this is a public problem and you think that you are able to, this is a problem that you hate, मतलब अंदर से आपको उस प्रॉब्लम की बहुत दुख होती है कि ये प्रॉब्लम है, हाँ आपको दिख रही है वो प्रॉब्लम और अभी तक उसका कोई मार्केट में सोल्यूशन नहीं है, तो आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। एग्जैक्टली। तो आपका स्टार्टअप आपको पता भी नहीं है कब खड़ा होगा। बस। ठीक है, तो आपने एक शार्क टैंक में एक स्टीव जॉब्स का एक बहुत अच्छा सा एक स्लोगन बोला था, क्या आपको उसके बारे में बता सकते हैं? कौन सा? डॉट मैचेस वाला। अच्छा, नहीं, I don't remember saying something like that, sorry. It's okay. So, श्रेयान, आपने शार्क टैंक में ये बोला था कि मुझे बायजूस और अनअकैडमी को खरीदना है
और जिसमें विनीता मैम की बहुत अजीब सी एक उन्होंने स्माइल भी पास की थी। तो अभी भी आपका सेम गोल है और या फिर वो आपका चेंज हो गया है? So जब विनीता सिंह ने पूछा था then she had asked me कि अगर वो आपको अप्रोच करेगी मुझे खरीदना है, तो मैंने ये रिप्लाई दिया था. So then नमिता had asked कि तुम्हें बायजूस का वैल्यूएशन नहीं पता है? हाँ. उस टाइम वैल्यूएशन $22 बिलियन था. $1 बिलियन था. एंड आई थिंक पता नहीं मेरे पनौती है या क्या है, या इट वाज लकी फॉर मी दैट मैंने बोला कि नहीं मुझे खरीदना है, एंड नाउ दैट कंपनीज वैल्यूएशन इज ज़ीरो. Oh my God. In fact, if I want to buy it, You can buy it. I'll have to pay $1.2 billion loan that they have. तो अभी मुझे 10,000 करोड़ वो करने हैं कि मैं उनका लोन चुका पाऊँ so that I can buy the company. तभी आप दोबारा शार्क टैंक में एक वीडियो अपलोड कर पाओगे. And definitely I'll upload that video. I'll invite you again. Like finally, Shreyan Daga has bought up an academy and all. Wow. So this is very great thing. अच्छा, अगर जो आपके स्टूडेंट्स आप ऑफलाइन भी सिखा रहे हो ऑनलाइन भी सिखा रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन की जो डिमांड थी वो लॉकडाउन में ज़्यादा थी, बट नाउ ऑफलाइन की ज़्यादा डिमांड है. आजकल एक स्कूल चल रहे हैं, कंसेप्चुअल एकेडमी के नाम से भी एक स्कूल चल रहा है, जो कि प्राइवेट स्कूलिंग के अलावा वो ट्यूशन टाइप में स्कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और वो 10th-12th भी उनकी वहीं से पास आउट करा रहे हैं. वो फुल टाइम एक स्कूल है. तो आपने कुछ ऐसा सोचा है फ्यूचर में करने के लिए? नहीं. खुद का स्कूल बनाने के आपको कोई? We are a very asset light model. मतलब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते. We will be able to empower people to do the work. लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहते, ये ना ऑडियंस गलत समझ जाएगी. आप इसको थोड़ा elaborate कीजिए. Means हम एक so I'll tell you more better way. Basically, we don't have any sales people in our team. We don't have any full-time teachers in our team. Okay. Which means what our team basically does is we are a asset-light model, which means we connect the person to the right person. Okay, so example, अगर आपकी स्कूल को एक टीचर चाहिए तो हम वो एक टीचर फ्रीलांसर ढूंढ के उस स्कूल को प्रोवाइड करते हैं. And we make sure that the classes are happening, the quality is maintained. So this is a very asset-light model, which means we don't have any fixed costs. हम ना तो स्कूल का रेंट का खर्चा देखते हैं, ना ही लोकेशन का खर्चा देखते हैं, ना ही वो सब. तो these things I personally prefer because it's a asset light model, and I don't feel school is a asset light model. It's a very asset heavy model. स्कूल का जगह, फैसिलिटी, रेंट, ये बहुत लफड़ा है. ओके. और आप जैसे कि आपने शार्क टैंक पे यही बात बोली थी कि मेरे को बायजूस और उडेमी को खरीदना है. आप और यूथ उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था और आपने काफ़ी अपने इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी कंपनी को खरीदना चाहते हो. ठीक है, तो बहुत लोग कमेंट भी करते हैं फॉर श्योर. ठीक है, तो आप ये कहने के बजाय यूथ को इस चीज़ के लिए क्यों नहीं इंस्पायर करते कि आप मुझे बायजूस जैसी कंपनी खड़ी करनी है, बायजूस जिससे भी बड़ी कंपनी खड़ी करनी है? 100%. सो मतलब खरीदने के लिए उससे बड़ा होना ज़रूरी है ना. So you can't buy something without being bigger than that. No. Like my statement is, why don't you make OLL bigger than Byju's? Yeah. That's what my point is. Like make your brand bigger than existing brand. 100%. So I personally wanted to Thank you for share the that. Yeah. Sorry for that. चलो ठीक है. अगर स्टूडेंट्स को कोई लैंग्वेज सीखनी है टेकी बैकग्राउंड में, तो आप कौन सी लैंग्वेज सीखना प्रेफर कराओगे? मैं तो बोलूँगा कि आप स्क्रैच सीखो. स्क्रैच अच्छे से. बिकॉज जो लैंग्वेज है उसका तो बस सिंटैक्स चेंज हो रहा है. राइट. पाइथन से जावा, जावा से जावास्क्रिप्ट, C++, सबका सिंटैक्स ही चेंज हो रहा है. अल्टीमेटली तो कोर ऑफ लैंग्वेजेस, कंडीशंस, लूप्स, लूप्स आर सेम, और लाइक प्रिंट करने का ये सारे मेथड डिफरेंट हो जाता है. अदरवाइज यू हैव टू मेक दोस लॉजिक्स आर सेम. लॉजिक्स सब में सेम रहते हैं. स्क्रैच इज द बेस्ट टूल टू लर्न लॉजिक. आई थिंक मैंने इतना स्क्रैच पे एक्सप्लोर किया था कि मेरा लॉजिक बहुत स्ट्रांग हो गया. वंस योर लॉजिक इज स्ट्रांग, आपका बेस क्लियर है, मतलब योर बेस इज क्लियर, सो then you can do anything with that. You can use different languages, play around with it. तो लॉजिक मतलब बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. लॉजिक आई थिंक स्क्रैच इज द बेस्ट. ब्लॉक बेस्ड है
टाइपिंग वाइपिंग नहीं करना पड़ता है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कोई भी एज का कर सकता है. अच्छा, अनलीन मेथड एंड फैट मेथड आप कहते हो कि प्रेफर करना चाहिए टू स्टार्ट अप बिजनेस. ये मेथड क्या है, इनके बारे में कुछ हमें बताइए. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारे पास जो टीम है, वी हैव ओवर 130 people who are working, out of which only 20 people are full time payroll. Okay. Rest all are on basis of the work that they do. We don't have a office rent to pay, so it's all on in my house only. On the second floor we have a office main, and we get done there. So I would say learn how to be kanjus. So if you can spend less in the start to build up, and then even when you grow, keep this mindset intact. Because spending more has never got anything. So our marketing budget today is zero. We don't have a sales team, but we still are able to achieve sales numbers that nobody else has seen in the market. I think you are the biggest scammer, or I can say a strategist. Biggest strategist you are. आप ना लोगों को ये इंस्पायर कर सकते हो कि बिना इन्वेस्टमेंट, बिना ज़्यादा खर्चा करे बिजनेस कैसे करे. ना ऑफिस का रेंट दिया, ना सेल्स में रेंट किया, ना सेल्स टीम को पे कर रहे हो. सबसे ज़्यादा खर्चा जिन चीज़ों में आता है आपने वो सारा तो बचा ही लिया. Exactly. So it's figuring out how to, what are the costs that you usually would incur, जो नॉर्मली कंपनीज बंद हुए आपके पहले, जो वो कॉस्ट इनकर किए, तो वो अवॉइड करके ये लीन मेथड फॉलो करना. अच्छा, OLL कंपनी क्या फ्यूचर में ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इन सब में आएगी, या फिर वो सिर्फ एजुकेशन बैकग्राउंड में ही रहेगी? So the goal is skill-based education. Okay. So I should have 1 billion daily learners on OLL. That is the goal. So there is no future planning of turning it into a IT company or like a software development company. Never. Okay. Like there is something reason कि क्यों आप नहीं आना चाहते, क्योंकि like अगर कोई एंटरप्रेन्योर से मैं मिलती हूँ तो उनका तो रीज़न होता है कि डिफरेंट सिनेरियोज में अपनी कंपनी को लेके आना. So my goal was simple when I started also, कि मुझे practical learning का problem solve करना है. So I think वो अगर solve हो जाएगा तो मुझे बाकी कुछ. So what do you think that practical learning solution is now solved? No, not yet. No, that's why I'm still working in OLL. Okay. So until every child in India or outside India also is focused on practical first learning, skill based learning, until every parent thinks that skills ज़्यादा ज़रूरी है, practically करना ज़रूरी है, marks are important, but for practical, not for theory. Not for theory. So if every parent starts thinking that, and every child starts doing that, every school starts teaching it, that's when I'll be like कि भाई बस करो, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ठीक है. अच्छा, आप 37 डेज तक भूखे रहे हो. इसका रीजन बता दो सबको. मुझे मेरा आफ्टर सेल्स सर्विस जो था, ऑपरेशंस, वो ऑटोमेट करना था. तो और एकदम स्ट्रीमलाइन करना था. तो मैं सोचा कि क्या मोटिवेशन होएगा, लाइक कि फॉरगेट ऑल दिस, खाना पीना छोड़ देते. सो खाना छोड़ देते. सो आई वाज ओनली ऑन अ लिक्विड डाइट. सो आई यूज्ड टू ओनली हैव जूस और वाटर और सूप, मैक्स टू मैक्स. इज दिस योर पश्चाताप कि जब तक काम नहीं होगा तब तक कुछ करूंगा ही नहीं? लाइक लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं, आपने लिक्विड डाइट पे चले गए आप. फुल्ली. सो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे चाहिए. तो 37 डेज में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? आपने 37 डेज में अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे कैसे किया? ऑटो पायलट स्पेसिफिकली नहीं, बट ऑपरेशन स्मूथ कर दिया. सो दैट वाज द गोल. So, क्या आपने ऑपरेशनल जो स्पीड थी उसको इंक्रीज कर दिया? चेक पॉइंट्स थे, टेक ऐड किया, पूरा बॉटलनेक्स को सॉल्व कर दिया. लाइक हाउ? प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम पकड़ा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लाइक all those things. So like example, a teacher, how do we ensure they reach on time? How do we ensure what they're wearing? How do we ensure that what they have taught is proper? After that, how do we ensure the experience for the student was nice? So all these things were the things that I wanted to make sure. तो ये सब चेक करके सॉल्व करते गए. सो ओके. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन आई हैव टू आस्क. अगर किसी को शार्क टैंक पर जाना है तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? सो आई थिंक सबसे बड़ा एडवाइस है कि ये एक एंटरटेनमेंट शो है. ओके.
right? It's a TV show. So you're going there. What do you need to know in any TV show? जैसे सास बहू वाला TV show तो ड्रामा है, right? So why will Shark Tank select you if you have a story, if it is something that is TRP worth? TRP worth, right? मतलब जिसमें कुछ ड्रामा, अगर आपकी स्टोरी यूनिक नहीं है ना फिर आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है, तो आपका कोई एंट्री नहीं। एंड उसकी वजह से कई बार सोनी टीवी आपकी क्लिप्स को भी कट कर देते हैं क्योंकि आपकी इतनी स्पाइसी स्टोरी नहीं थी। So मसाला you चाहिए। need to make it spicy. It's a TV show. India sells on entertainment. मसाला, लफड़ा, झगड़ा। वैसे भी इंडिया तो वैसे स्पाइसी खाना खाता है। So बस वही है। So make sure you have a story that sells. अच्छा, आपका जो शार्क टैंक पर जब आप गए थे, आपकी पिच आई थिंक 2.5 आवर्स की थी और वो टीवी पर दिखाई गई 12.5 मिनट्स की। तो ये आपको सही लगा या गलत लगा? सही लगा। Why? Because I had made some mistakes, so luckily the editor ने कट कर दिया। कैसे मिस्टेक? रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बोलते वक्त तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ा गया था, ऊपर नीचे था। बट स्टिल आपकी तारीफ बहुत ज्यादा की। लाइक अमन गुप्ता said you are a champ, पीयूष बंसल said that you are amazing person, बट लाइक उन्होंने इतनी तारीफ भी की पर फिर भी कुछ शार्क्स ने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया, तो that was okay for you. Yeah. So this was it. But thank you so much. I think please do, इतना मेहनत किया है, please do subscribe to this channel. Oh my God. And do follow. It's a very, very good initiative. Thank you so much for taking this. Thank you so much, Shreyan. Do support the vision. Yeah. Thank you so much for being here today with us. So bye bye everyone, and we'll get back to you with another podcast video. Till then, see you and subscribe to our channel.